الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز طالب علم دوستو، دورہ تحقیق المسائل 2018 کے شرکاء اور سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج جس عنوان پر میں گفتگو کرنے لگا ہوں یہ ہے صفت حاضر و ناظر خاصہ خداوندی. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، نظریہ، موقف، مسلک اور رائے یہ ہے کہ اللہ رب العزت پوری کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہیں. ہر وقت، ہر جگہ، ہر کسی کو دیکھنا، ہر کسی کے پاس ہونا، ہر کسی کے قریب ہونا، یہ خاصہ اللہ رب العزت کا ہے. بس اللہ جسم سے پاک ہیں، جان سے پاک ہیں، اور اللہ بلا جسم ہر جگہ ہے. وہ کیسے ہیں؟ ہماری عقل مخلوق ہے، اللہ خالق ہے. مخلوق کے اندر دم نہیں ہے کہ وہ خالق کا ادراک کر سکے. مخلوق کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ خالق کی حقیقت کو بھانپ سکے. مخلوق کے صلاحیت کی بات نہیں ہے کہ وہ خالق کے معاملات کو جان سکے. لہٰذا اللہ ہیں، بلا جسم ہیں، ہر جگہ ہیں، ہر مکان میں ہیں، ہر کسی کے قریب ہیں، ہر کسی کے پاس ہیں. تو اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہاں پہ لفظ سنا ہے خاصہ خداوندی، یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ. خاصے کا معنی یہ ہے جو صرف ایک میں ہو. یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ کا آسان ترجمہ کہیں گے صرف ایک میں ہو، کسی اور میں نہ ہو. اس کے مقابلے میں اہل بدعت موجودہ رضا خانیت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تو اللہ کے اولیاء بھی، اللہ کے انبیاء بھی ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں، ہر کسی کی معلومات کو جانتے ہیں اور ہر بندے کے معاملات کو سمجھتے ہیں، ہر کسی کے پاس ہیں. بلکہ یہ نظریہ جاتے جاتے اس نتیجے پر پہنچا ہے جس نتیجے کو بندہ گستاخی کا معاملہ کہنے لگ جائے. جانوروں تک کے بھی اس علم کے وہ لوگ قائل ہو گئے ہیں. عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار پر کلفٹن میں موجود تھا. اس کے قریب مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کی قبر ہے. مجھے اس قبر پہ جانے کا اتفاق ہوا تو ایک چھوٹی سی بلی بیٹھی تھی. جیسے عادت ہے، فطرت ہے، ہم بلی کو ایسے بھگاتے ہیں، کیسی ہو، یعنی ایسے کر کے بھگانے کے لیے. مجھے تو نہیں پتا وہ محترمہ بلی صاحبہ تھی نا، تو بعد میں سمجھ آیا. انہوں نے مجھے کہا نا پیر کی بلیوں کو نہیں بھگایا جاتا، یہ بھی علم غیب جانتی ہیں. یہ میرا مشاہدہ ہے، یہ میں آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں، کوئی تھیوری پیش نہیں کر رہا، کسی کی کارگزاری آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا. اسے نہیں بھگانا چاہیے، یہ عالم الغیب ہے، یہ بھی علم غیب جانتی ہے. جب بلی بھی علم غیب جاننے لگ جائے، ابھی بھی نعوذ باللہ سیدنا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرتے ان احباب کو تھوڑی سی عقل بھی نہیں آتی کہ ہمیں کہتے ہیں کہ اس نے کہا ہے جانوروں جیسا علوم ہے. حالانکہ حضرت تھانوی اس الزام سے مبرہ ہیں، بری ہیں، پاک ہیں، دور سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ایک حدیث پاک کے مطابق اس بات پوری کر کے میں موضوع شروع کر رہا ہوں. من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اعلان فرمایا ہے، اے پیغمبر کہہ دیں اللہ فرماتے ہیں جو میرے دوست سے دشمنی رکھے گا میں اس بندے کے لیے اعلان جنگ کر رہا ہوں. اور آپ کو جنگ کے اصول بخوبی معلوم ہیں کہ جب جنگ ہوتی ہے ہر دو فریق کے درمیان، پہلا فریق چاہتا ہے میں دوسرے کی اعلیٰ چیز پر ضرب لگاؤں،
जो दूसरे के अंदर सबसे अच्छी चीज मौजूद हो उस पर ज़रब लगाऊं। इसलिए पहली ज़रब या आंखों पर फायर किया जाता है या उसके कनपट्टी पर और उसके माथे के ऊपर फायर किया जाता है, वो उसकी आला चीज पर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक फरमाया, मन आदा ली वलियन, मेरे दोस्त से अगर तुमने दुश्मनी और बोझ रखना शुरू कर दिया, फकद अज़नतुहु बिल हर्ब, मैं जंग का ऐलान कर रहा हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का जब जंग का ऐलान हुआ है तो सामने वाले के मुताबिक जो उसकी आला चीज है वही खत्म करेंगे। इंसान के जिस्म में आला चीज ये ज़हनियत है, अकल है, सोच और फिक्र है, जिसे फिक्र पारसा कहते हैं। समझना है, इदराक अकल है, क्योंकि बंदा कितना अच्छा लिबास न पहन ले, कितना अच्छा खाना न खा ले, कितनी अच्छी तरीके पे दौलत न कमा ले, जब तक इसमें अकल मौजूद नहीं होगी लोग इससे प्यार नहीं करेंगे। जब तक इसमें अकल मौजूद नहीं होगी दुनिया इसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होगी। अगर अपनी तरफ इसने दुनिया को मुतवज्जे करना है, वो लिबास अच्छा हो या ना अच्छा हो, खुराक अच्छी हो या अच्छी ना हो, इसके पास दौलत वाफिर हो या ना हो, इसका दिमाग अच्छा हो तो लोगों के कुलूब मुतवज्जे हो जाते हैं, अज़हान मुतवज्जे हो जाते हैं, लोगों की फिक्रें मुतवज्जे हो जाती हैं। तो अकल आला चीज है। अल्लाह का जब मुकाबिल में ये आया तो अल्लाह ने इसकी अकल को माफ कर दिया, अल्लाह ने इसकी अकल को खत्म कर दिया। जो एतराज ये हजरत थानवी पर कर रहा था वो पीर की बिल्ली के लिए इल्म गैब मानकर अपने लिए एतराज कर बैठा, इसे कहते हैं फकद आज़नतुहु बिल हर्ब। जो उसके साथ था ना वही अपने घर में साबित हो गया है। तो ये अल्लाह के वली के साथ, अल्लाह के वली के साथ जितना बोझ रखेंगे उतना ही फिर अल्लाह निकालता है, फिर वो निकालते हैं, फिर वो मामला सामने आ जाता है। मैं हैरान हूं, रजा खानियत ने अकाबरीन उलमा देवबंद पर कुफर के फतवों की मशीन चला दी थी। उस वक्त हजरत मौलाना जफर अली खान, अल्लाह इसकी कब्र पर करोड़ों अरबों रहमत नाजिल फरमाए। कभी गुजरावाला वजीराबाद जाकर इनकी कब्र पर फातिहा भी पढ़ाया करो। उन्होंने बड़ा अजीब जुमला फरमाया था कि बरेली के फतवों का सस्ता है भाव, मिलते हैं कोड़ी के अब तीन तीन, कोड़ी कहते हैं टके को जो उस जमाने के था, मिलते हैं कोड़ी के अब तीन तीन, खुदा ने ये कहकर उन्हें ढील दी, व उमली लहुम इन कैदी मतीन। तो फिर वही हुआ, इन्होंने इन पर कुफर का फतवा दिया। अकाबरीन उलमा देवबंद की जिंदा करामत यह है, आज रजा खानियत की मिल्लत में कोई दो, कोई तीन, शायद दो और तीन में सखावत कर रहा हो, कोई एक अथेंटिक मौलवी इनमें नहीं मिलेगा जिस पर सबका इत्तेफाक हो। किसी न किसी ने कुफर का फतवा दे रखा है। आप दस्तो गुरेबा की 4 जिल्दों को मुतालिया करें, मौलाना कादरी ने इनके बखे उधेड़ के रख दिए हैं, इनके घरों में वो मामला सामने रख दिया है कि आपके पास कोई 2-3 एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिस पर सबका इत्तेफाक हो। अगर एक बंदा इसे मौलवी मानते तो 2 बंदे से कहते हैं मुसलमान नहीं है, ऐसे काफिर हो गया, ऐ तो गुस्ताख रसूल है। आपने देखा नहीं था वो जो बंदा अपनी मिल्लत का तर्जुमान बन के हमारा मेहमान बना था, तो हमने उसके सामने भी उसका चेहरा खोला है कि आप अपनी मिल्लत के सामने अथेंटिक मौलवी नहीं, मुसलमान भी नहीं है। उन्होंने तो आप पे गुस्ताख रसूल का फतवा दिया हुआ है। पहले आप अपने घर की खबर लें, फिर उसके बाद हमसे बात करें। तो आपने देखा वो तर्जुमान का तर्जुमा करने के लिए भी दुनिया में कोई नहीं है। उसकी वजह, उसको हमने कहा जब आईना उठाया करो पहले देखा करो फिर दिखाया करो। आप आईना उठाकर दिखाना शुरू कर देते हैं, यूं नहीं, आईना पहले देखना चाहिए फिर उसके बाद दिखाना चाहिए। तो ये सिफत हाजिर और नाजिर है। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा नजरिया, अल्लाह की जात बिला जिस्म, अल्लाह की जात बिला जसद हर जगह मौजूद है। इसके मुकाबले में इन्होंने अपने मज़ऊमा, अपने गड़ांतु और अपने बनाए हुए अकीदे की तशहीर जो की है, ये आपके सामने फाइल मौजूद है, आप देखते चले जाइए इसके हवाले। इसमें ये हजरात कहते हैं कि जो ये अकीदे न माने वो मुसलमान ही नहीं है। ये अनवार कमरिया सफ़ा 107 तबा जामिया कमरुल इस्लाम, ये दिल्ली कॉलोनी कराची से छपी है। मौलाना ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी साहब लिखते हैं, महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर नाजिर होने का इनकार इल्तिजाम कुफ्र है जिससे निकाह नहीं रहता। पता नहीं इनको हमारे निकाह की बड़ी फिक्र पड़ी हुई है। दूसरा हवाला मौलाना फैज अहमद उवैसी साहब का है। इनका जो रिसाला है उसका नाम है साहबा कराम का अकीदा हाजिर और नाजिर। इसका सफ़ा नंबर 8 है। ये कुतुब खाना उवैसी सीरानी रोड बहावलपुर से छपा है। लिखते हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर नाजिर होने का इनकार वही करेगा जो या तो अपने आप को मोमिन न जाने या हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी न समझे। तीसरा हवाला
ताला मिक़यास हनफियत हिस्सा हाजिर और नाजिर सफर नंबर 268। ये स्वयं तबा है, इंशा प्रेस उर्दू बाजार लाहौर से छपी है। मौलवी मोहम्मद उमर इचरवी लिखते हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर और नाजिर होने के मुनकिर हैं, इनकी यही वजह ही हो सकती है कि वो ईमान से खाली हैं। चौथा हवाला ये आपके सामने मौजूद है, ये इबारात अकाबिर का तहकीकी व तनकीदी जायजा, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 170 तबा अहल सुन्नत पब्लिशर दीना जेहलम से छपी है। इस पे मौलवी गुलाम नसीरुद्दीन सियालवी लिखते हैं, ये लोग यानी देवबंदी उलमा के बारे में कहते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ कामिला के इनकार की वजह से काफिर हो गए हैं। जिन सिफात कामिला के इनकार इन लोगों ने किया है, इनमें इल्म गैब भी है, हाजिर और नाजिर का मुनकिर हो जाना भी है। ये इनके कुफ्र की वजूहात हैं। 5वें नंबर का हवाला देवबंदी मजहब मशाइख और उलमा की हिदायत सफर नंबर 635, ये इशात 1 नवंबर 2012 को हुई है। इसका नाशर बरेलवी तंजीम अहल सुन्नत पाकिस्तान है। मौलवी गुलाम मेहर अली शाह खतीब चिश्तियां यही इबारत लिखते हैं जो ऊपर मैंने आपके सामने गुलाम नसीरुद्दीन सियालवी की बताई है। ये 5 वो इबारात हैं जो बरेलवी तबके की मशहूर और मारूफ हैं कि उलमाए देवबंद मुसलमान नहीं है। तवज्जो रखें, अब मैं इस पर थोड़ा सा वो तबसरा आपकी खिदमत में समझाता हूं, जरा आप मेरी आंखों में आंखें मिलाएं ताकि मैं आपको कुछ बात समझा पाऊं। जब गुफ्तगू हो, बात करनी पड़ जाए, शुरू में उसूल याद रखें, बात नहीं करें, अपने बंदों को समझाएं। मैंने कल भी बात की थी इस पर कि अपनों पर मेहनत करें। आप अपनों पर मेहनत करेंगे आपको मामला ठीक रहेगा, गैरों पर मेहनत न करें। जो बंदा अपनी कश्ती को बेहतरीन बनाता है, महाजबीन दिल नशीन और हसीन बनाता है, दूसरे की कश्ती डूब जाए इसे परेशानी नहीं रहती। और जो दूसरों को कहेगा तेगा लाचा और ये कर ले वो कर ले, अपनी कश्ती की फिक्र नहीं है, तो फिर एक दिन लोग इस पर फातिहा पढ़ने भी आ जाएंगे। पता नहीं आएंगे भी या नहीं आएंगे। अपने घर को मजबूत करो, अपने बंदों पर मेहनत करो, दुरूद शुरू करो, बयानात शुरू रखो, मजलिसें शुरू रखो, बताना शुरू करो अपनों को। क्या आपने हदीस पाक नहीं सुनी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया था, अली 70 काफिर कत्ल करने से बेहतर है एक को मुसलमान कर ले। इसका क्या मतलब है? एक को जो मुसलमान करेंगे इसकी मेहनत जो होगी दीन ईमान पर वो आपके खाते में ज्यादा आएगा। तो 70 दूसरों पर मेहनत करने से अच्छा है अपने एक बंदे की तैयारी शुरू करा दो। बस मैंने ये तय किया है, मैं अपनी सलाहियतें किसी आले बातिल पर सर्फ नहीं करता। फोन आए, अस्सलाम वालेकुम, मैंने एक मसला पूछना है। बेटा बताएं आप हनफी देवबंदी हैं? जी नहीं। ठीक है, आप किसी अपने आलम से पूछिए, आपको अपने मसले पर तसल्ली हो जाएगी, मुझसे मत पूछिए। अगर वो चुप हो जाए तो बात खत्म। अगर कहीं जवाब नहीं आता फिर हमें भी जवाब आता है। हम सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकालना जानते हैं। फिर मैं भी कहता हूँ हाँ बेटा मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको अपने मजहब में शक है, आप अपने मजहब को मशकूक मानो कि वो गलत है, मुझे शक पड़ गया है, मैं शशो पंज में मुब्तला हो गया हूँ, फिर मैं आपको आपकी मजहब की कली खोल के हकीकत दिखाऊंगा। अगर आपको आपके मजहब में शक नहीं है तो फिर अपने उलमा से पूछे, मैं तो आपके मजहब का आलिम नहीं हूँ। मैं कुकड़ हटा गया, ये अब आप तशरीफ फरमा है और नवाब ने मुझे कहा ले ये लोग ये सवाल करेंगे वो सवाल करेंगे। मैंने कहा मैं इनके सवाल जानता हूँ। मैंने शुरू में यही कहा, मैंने कहा मुझसे मेरा देवबंदी हनफी उठ के सवाल करे मैं बताऊंगा। गैर मजहब वाला उठना चाहते तो अपने मजहब के आलम से पूछे, हमसे न पूछे। हमसे उस वक्त पूछे जब माने उसका मजहब में उसे शक पड़ गया है। आप पूछो, हूं कोई नहीं पूछता, अब कोई नहीं पूछ। अपने बंदों पर सलाहियतें पैदा करो, गैर के ऊपर सारा दिन रजा खानियत की फिक्र, सारा दिन ममातियत की फिक्र, सारा दिन गैर के मुकल्दियत की, इनकी फिक्र कर करके अपने बंदों को दलाइल नहीं सिखाए। राफिजियत पर बात करने से बेहतर है अपने बंदों को खिलाफत सिद्दीक के दलाइल से बहरावर कर लो। मिर्जाई तुम्हारे हाथ काबू नहीं आएंगे, छोड़ो मिर्जाइयों को, किसी के लिए जहन्नम भी बनी है। अपने बंदों को हयात ईसा, अपने बंदों को खत्म नबूवत के दलाइल समझा दो। गैर मुकल्दियत को क्या आप समझाओगे? आप अपने बंदों को इमाम आजम अबू हनीफा की फकाहत समझा दो। क्या आप उलमाए देवबंद के लिए फाजिलीन के तबका, वो फाजिल बरेलवी के तबके पर बात करने से बेहतर है अपने उलमाए देवबंद को आप इबारात के दलाइल समझा दें। क्या ममातियत का तारुफ करें, अपने बंदों को अकीदा हयातुन नबी के दलाइल समझा दें, अपनों पर मेहनत करें। मैं एतराज नहीं करता, हमारे अकाबिर ने इखलास से इनको पढ़ाया होगा, लेकिन अगर शुरू से ठुड्डा मार के निकाल दिया जाता तो कभी कैप्टन मसूदुद्दीन उस्मानी अपने नाम के साथ फाजिल बिन नूरीटोन और फाजिल विफाकुल मदारिस अरबिया ने लिखता, कभी सईद चित्रोड़ी अपने आप को फाजिल दारुल उलूम कबीर वाला ने लिखता। यकीन माने अपने
हम तो इखलास के लिए चलते हैं। मैंने तय किया हुआ है हमारे मदरसे में, आप फाइल देखे नीचे, तालिब इल्म का अहले सुन्नत वल जमात होना ज़रूरी है। और हम अहले सुन्नत वल जमात की तशरीह मुल्क पाकिस्तान हिंदुस्तान में हनफी देवबंदी ही समझते हैं। मेरे एक शागिर्द है, मुझसे पढ़ रहे थे शाशी, तो उन्होंने एक गैर मजहब वाले शख्सियत के लिए मुझे कहा इमाम आला हजरत यूँ फरमाते हैं। मैंने शाशी बंद कर दी। मैंने कहा बेटा एक बात तय हो गई, मुझे तो नहीं पता था आप ये हैं, आपने तो फॉर्म पुर कर दिया है, तो आप मुझे ज़रा समझाएं कि वो आला हजरत हैं और मैं समझाऊंगा वो अदना हजरत भी नहीं है, अवबास करते हैं। मैंने फाइल बंद। उस्ताद जी आप नाराज़ हो गए। मैं बेटा मैं, उस्ताद जी आप गर्म हो गए। मैं मुझे हाथ लगा, मैं तो ठंडा बैठा हूँ, कौन कहते हैं गर्म हो? मैं गर्म, गुफ्तगू में हमेशा अपने जहन को बिल्कुल ठंडा रखा करो। जहन के 80 खुलियात हैं, गुस्से में 60 बंद हो जाते हैं, 20 खुलियात से फिर नहीं सोचा जाता। बिल्कुल मौकफ गर्म हो, लहजा इस पर नरम हो। मैंने कहा मैं ठंडा हूँ, आप बात करें। हमारी बात चली 2 दिन, वो मुझे नहीं समझा पाया, आला हजरत है। मैंने कहा समझा लो, मैं भी तुम्हारी बात मान लूंगा, नहीं तो फिर आप मेरी बात माने। हक्कुन अहक्कु अन युत्तबा, हक के लिए सबसे बड़ा हक ये है कि उसका इत्तिबा किया जाए। आप समझ लें, उसने नहीं समझा, बंदा हट गया। न मुझे उसकी ज़हानत चाहिए, न मुझे उसकी फतानत चाहिए, न मुझे उसकी इताअत चाहिए, न मुझे उसकी खुदमत चाहिए, पहले उसका अकीदा ठीक होना चाहिए। इस पर हमें कोई फिक्र नहीं है। कल मैं तो नहीं, मेरे बारे में तो कोई नहीं कहेगा फलां अहले बातिल इसका शागिर्द है, इस इल्ज़ाम से कम कोई एक बंदा तो बरी हो जाएगा। इसीलिए अपनों पर मेहनत करेंगे तो बात बनेगी। अब मैं बात कर रहा था उसूल गुफ्तगू का क्या है। कभी बात करनी पड़ जाए, ये नहीं हो आप दौरा ताकीकुल मसाइल से उठे और किसी रजा खानी को पकड़ लें। मुफ्ती साहब ने कहा था बात करनी पड़ जाए तो यूं करना, ना ना, ये अपनी सलाहियतें आले हक के दर्स पर लगा देना, अपने बंदों को समझा देना, तो इस पर हम राजी हैं। बात करनी पड़ भी जाए, क्योंकि मुनाजरा ये इल्मी जंग है, और इल्मी जंग के लिए उसूल वो हैं जो जंग के मौजूद है। ला तमन्नौ लिकाअल अदुव, हदीस में है जंग की तमन्ना नहीं करो, और अगर हो जाए तो फिर मजबूती इख्तियार करो। आप कभी इसके लिए, इसलिए हम चैलेंज नहीं करते। जिसको शौक है वो आकर हमसे बात कर ले, जिसको शौक है वो तशरीफ ले आए, हम उसको शौक बड़े अच्छे तरीके से, आसान तरीके से, बेहतरीन नंबरों से पूरा करके दिखाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। तो खुद नहीं करते, हमारे अपने हवाब हैं। वो कहते हैं ना मुझे नफरत करने वालों से क्या शौक, मैं मोहब्बत करने वालों में मसरूफ रहता हूँ। इसीलिए उस फिक्र नहीं किया करें, खुली खुली बात करो। तो अगर बात करनी पड़ जाए कभी, तो फिर कौन सा तर्ज इख्तियार करेंगे, वो तर्ज मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ। 2 तबसरों के तहत जो इनका अकीदा आया है ना, आप मुझे देखें, बाज़ चीज़ें देखने से हल होती हैं। देखने का माना यह है अफलाक से खींची जाती है, सीनों में उतारी जाती है। तौहीद की मैं बाज़ औक़ात सागर से नहीं नज़रों से पिलाई जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ मुझे देखो, 2 किस्म के तबसरे। नंबर 1,